Hello everyone, this is the part 2 of chapter number 22 and today's topic is power and function of the chief minister. All decisions made by the council are communicated to the government by the chief minister. The wishes of the governor are also communicated by him or her to the legislature. The chief minister is the leader of the majority party in the Vidhan Sabha. Once he or she is appointed chief minister, he or she has to submit a list of names to be appointed as minister to the governor. The timetable of the meetings of the legislature is prepared by the speaker. He consults the chief minister when he prepares the program. The chief minister is the chairperson of the meetings of the council of ministers and the work of different departments are coordinated by him or her. अब जो भी डिसीजन जो है हमारी काउंसिल ऑफ मेंबर्स लेते हैं वो सारा का सारा गवर्नर के साथ कम्युनिकेट करके उन्हें बता के फिर वो डिसीजन लिए जाते हैं। जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो मेजॉरिटी पार्टी के हेड होते हैं जो कि विधानसभा के चीफ मिनिस्टर होते हैं। जब वो अपॉइंट कर दिए जाते हैं चीफ मिनिस्टर तो उसके तुरंत बाद उन्हें एक लिस्ट बनानी होती है जिनको भी उन्हें एज अ मिनिस्टर अपॉइंट करना है, वो लिस्ट उन्हें गवर्नर को देनी होती है। और जो भी टाइम टेबल रहेगा मीटिंग्स का लेजिस्लेचर की वो कौन बनाता है, स्पीकर प्रिपेयर करता है। और जब भी वो इन प्रोग्राम्स का शेड्यूल बनाते हैं तो उनकी ड्यूटी बनती है कि वो चीफ मिनिस्टर से कंसल्ट करें। और जो चीफ मिनिस्टर हैं वो चेयरपर्सन होते हैं मीटिंग्स के, जो भी काउंसिल ऑफ मेंबर्स लेते हैं मीटिंग्स, और वो सारा का सारा काम जो है कोऑर्डिनेट उनके द्वारा ही किया जाता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स का। नेक्स्ट पैराग्राफ इज when election take place to the state legislature, government is formed by the party that gets the majority of seat. The elected member of this party elect a leader. This leader is formally appointed the chief minister of the state by the governor. The chief minister allots each minister a department. Ministers are also given a rank. Senior most minister take crucial decision related to government. They are given back cabinet rank. It is they along with the chief minister who make major policies. Minister next in the rank are known as Minister of State. They can hold independent charge of the department. Otherwise, they will help Minister of Cabinet rank. Deputy Minister are minister who are lowest in rank. They help the minister carry out their work. Each minister is in charge of a particular department. This department relates to a subject which falls within the state list. Some subjects contained in the list that are public order, health, sanitation, agriculture, land revenue, etc. Most policies related to government are made by cabinet minister. They plan an important role in the legislature at the time of lawmaking, help in the preparation of the budget and follow direction given to them by the central government. जैसे कि अब मैंने आपको पीछे बताया था कि जब भी इलेक्शन होते हैं तो जो भी पार्टी की मेजॉरिटी सीट्स होती हैं वही जीतती है और उसी में से एक लीडर को इलेक्ट कर लिया जाता है और उस लीडर को चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है जो कि गवर्नर बनाता है। और चीफ मिनिस्टर जो है हर एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है और हर मिनिस्टर को एक एक डिपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, एक एक डिपार्टमेंट। और जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको रैंक भी दिया जाता है। जो सीनियर रैंक के मिनिस्टर होते हैं उन्हें क्रूशियल डिसीजन के लिए बुलाया जाता है। जब भी क्रूशियल कोई भी काम होता है तो उसमें वो हेल्प करते हैं और उन्हें जो है वो कैबिनेट रैंक दिया जाता है। और जो भी मिनिस्टर होते हैं जो कि ये जो मिनिस्टर होते हैं ये मेजर पॉलिसीज़ बनाते हैं, ठीक है। और जो भी मिनिस्टर्स होते हैं उनके बाद जिनके रैंक आते हैं उन्हें बोला जाता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट। इनके पास क्या होता है, इंडिपेंडेंट चार्ज होता है अपने डिपार्टमेंट का, ये अपने डिपार्टमेंट में इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं। अदरवाइज जो है हेल्प भी कर सकते हैं कैबिनेट मिनिस्टर की। समटाइम कैबिनेट मिनिस्टर की हेल्प के लिए भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट को बुलाया जाता है। जो डिप्टी मिनिस्टर्स होते हैं वे सबसे लोएस्ट रैंक के मिनिस्टर होते हैं। ये जो है स्टेट मिनिस्टर को हेल्प करते हैं उनके काम के लिए और हर एक मिनिस्टर को जो है वो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का चार्ज दिया जाता है। और जो भी ये डिपार्टमेंट होते हैं ये अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड ही काम कर सकते हैं। जैसे कि जो भी स्टेट लिस्ट में जो भी इनके काम आएंगे उसी के रिलेटेड काम करेंगे, इन्हें दूसरे काम के लिए नहीं बुलाया जाता। कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं वो स्टेट लिस्ट में आते हैं जैसे कि पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ, सैनिटेशन, एग्रीकल्चर, लैंड वैल्यू। तो काफ़ी सारी पॉलिसीज़ हैं जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड होती हैं जिन्हें कौन बनाता है, कैबिनेट मिनिस्टर बनाता है। तो जो ये सारे मिनिस्टर हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लॉ मेकिंग के टाइम, बजट प्रिपरेशन के टाइम, और इसलिए ये गवर्नमेंट को डायरेक्शंस भी देते हैं अपनी पॉलिसीज़ को बनाने में। Next topic is civil services. The day-to-day administration work in the department of the government is done by official of the civil service. These officials are known as civil servants. The special body called the Union Public Service Commission, that is UPSC, which select the civil servants for the central civil service, posts some civil servants in each state. The rest of the civil servant of a state selected by the State Public Service Commission.
The chief secretary is the head of the state civil service. Under him there is a secretary or principal secretary in charge of every department. जो भी डे टू डे काम होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, उन्हें करने के लिए किनको अपॉइंट किया जाता है? ऑफिशियल ऑफ सिविल सर्विस, और इनको क्या बोला जाता है? सिविल सर्वेंट्स बोला जाता है। और इनको अपॉइंट करने के लिए एक बॉडी बनाई गई है जिसको बोला जाता है यूपीएससी, जिसकी फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि सिविल सर्वेंट्स को सेलेक्ट करती है और उनकी पोस्ट के अकॉर्डिंग उन्हें ड्यूटी देती है। उसके बाद जो भी बचते हैं सीट्स, उन पर जो सेलेक्ट करता है, उन्हें कौन सेलेक्ट करता है? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। और जो भी हेड होता है स्टेट सिविल सर्विस का, उसे बोला जाता है चीफ सेक्रेटरी। चीफ सेक्रेटरी होते हैं जो वो हेड होते हैं स्टेट सिविल सर्विस के, और उनके नीचे कौन होता है? सेक्रेटरी या फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी इन चार्ज ऑफ एवरी डिपार्टमेंट। Next topic is administration of union territories. A union territory is administered by a lieutenant government or chief administrator or chief commissioner acting on the president's instruction. Sometimes the president puts the governor of a neighboring state in charge of administering a union territory. The law of administration may be different in different union territories. Usually the parliament make this law. Sometimes the parliament passes a law to set up a legislature in a union territory. Pondicherry, for example, is a union territory which has its own legislative assembly and council of members. अब यूनियन टेरिटरी में जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो किसके द्वारा की जाती है? या तो लिeutenant गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है, या फिर चीफ एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा, या फिर चीफ कमिश्नर के द्वारा, और ये सब प्रेसिडेंट के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ही वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। और जो भी प्रेसिडेंट होता है वो ये भी बोल सकता है कि जो भी नेबरिंग स्टेट है उस यूनियन टेरिटरी की, उसके जो गवर्नर है उसको भी कई बार एडमिनिस्ट्रेशन का चार्ज दिया जाता है किसी भी यूनियन टेरिटरी का। जो भी लॉ होता है, लॉ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो है अलग अलग हो सकता है अलग अलग टेरिटरी में। ज़रूरी नहीं है कि हर टेरिटरी का जो लॉ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो सेम ही हो। और जो पार्लियामेंट होती है यूजुअली वो ये लॉज बनाती है, लेकिन कुछ यूनियन टेरिटरीज़ में अपने ही लेजिस्लेटिव असेंबली है उनकी और अपने ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, जैसे कि पौंडीचेरी में अभी भी क्या है, जो यूनियन एक ऐसी यूनियन टेरिटरी है जहाँ पर उनके खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली है और खुद की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी है। सो विद दिस योर चैप्टर इज ओवर, होप यू अंडरस्टैंड वेल, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू सो मच।